देखिए एंटीबॉडी एक्चुअली टू डिफरेंट टाइप, antibody to different type. This is supposed to be the antibody to different type. First is the membrane bound antibody. And second is secretory or free antibody. Membrane bound antibody, which are actually bound to B cell surface or membrane. So those antibody which are bound with the surface of B cell or membrane of B cells are called as membrane bound antibody. And those antibodies which are secreted by plasma cells. हम लोग पढ़े थे टिश्यू चैप्टर में. The plasma cell is the actual cells which secrete the antibody. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि which cell secrete antibody? Plasma cell. So there are two different type of antibody. Membrane bound antibody and secretory antibody. मैं ये दोनों के बारे में और थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ आपको. Supposed to be this is a B cell and this is a naive B cell. The B cell which is just being formed or matured. B cells which is just formed or matured, or we can say it is a fresh B cell. समझ में आया? मतलब ये B cell अभी बोन मैरो में फॉर्म हुआ है, मैच्योर्ड हुआ है, किसी एंटीजन के साथ फर्स्ट टाइम बाइंड करेगा. ये किसी एंटीजन के साथ पहले से बाइंड नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम बाइंड करेगा as it is just being matured from the bone marrow. It's called as naive B cell. And जैसे कि मैंने अभी बोला कि B cell के सरफेस में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी. बाकी है ना अभी. So these are actually the membrane bound antibody, the antibody which is present bound with the B cell membrane. So we can say these are membrane bound antibody or B cell receptor. ये B cell receptor है. These are the receptors which are present on the surface of B cells are called as B cell receptor. Now, this antigen will bind with the antigen. This antibody will bind with the antigen. Suppose to this is an antigen. ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, फर्स्ट टाइम बाइंड कर रहा है. फर्स्ट टाइम बाइंड करेगा क्योंकि ये क्या है, नेव बी सेल है, फ्रेश बी सेल है. सो दे विल बाइंड विद द एंटीजन फॉर फर्स्ट टाइम. जैसे ही ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगा बाय द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दैट इज बी सेल रिसेप्टर, दैट विल बी डिवाइड. एंड ये है क्वेश्चन, डिवाइड होने में किसका रोल है? Who helps the division of naive B cell when they are binding with the antigen for first time? Who helps this division? अभी मैंने आपको बताया था previous classes में amnestic response and anamnestic response, primary response and second response. आपको याद होगा है ना? तो primary response when the that is what ना specific B cell and specific T cell will bind with the antigen, then they will be divided into effector B cell T cell and memory B cell T cell. याद है ना? And that effector B cell T cell will control the disease and memory B cell and T cell will what ना store in the spleen and lymph node for the future or secondary response. याद होगा ये, यही कहानी.
दिस इज द बी सेल। हम लोग टी सेल के बारे में पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। हम लोग क्योंकि ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ रहे इसलिए मैंने सिर्फ बी सेल लिखा है। तो बी सेल विल बाइंड विद द एंटीजन फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब ये प्राइमरी रिस्पांस है कि सेकेंडरी रिस्पांस है? फर्स्ट टाइम बाइंड कर रहे हैं भाई, तो प्राइमरी हुआ ना, तो हम लोग प्राइमरी ही पढ़ रहे हैं। So they will bind with the antigen for first time and they will divide in presence of T helper cell. यहाँ पे इस डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है? डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है? टी हेल्पर सेल। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ कि आप लोग पढ़े थे 12th में कि एड्स HIV अटैक द टी हेल्पर सेल। AIDS or HIV virus will attack the body to target the two different cells. Number one is macrophage, number two is T helpers. So आप सोचिए अगर T helper cell का नंबर रिड्यूस किया ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ द अटैकिंग ऑफ HIV, तो ये डिवीजन क्या नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा? एबनॉर्मल होगा। तो डिवीजन नहीं होगा या तो कम होगा। अगर ये डिवीजन कम हुआ, that gives rise to formation of what? That gives rise to formation of the effector B cell or plasma cell. And second is memory B cell. यही था ना? नो प्राइमरी रिस्पांस में तो यही पढ़े थे ना? तो effector B cell को अदरवाइज क्या बोल रहे हैं ना? प्लाज्मा सेल. And what is the function of this plasma cell? What is the function of this plasma cell? This will secrete. अभी मैंने बताया था प्लाज्मा सेल क्या सीक्रेट करता है? एंटीबॉडी सीक्रेट करता है. So this plasma cell will secrete secretory antibody or free antibody at the rate of 2000 to 20,000 per second for 4 to 5 days. देखिए इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी देखिए. So who will produce the antibody? Free antibody in a plasma cell at the rate of 2000 to 20,000 per second for how many days? 4 to 5 days. And यही एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा जो अभी बाइंड किया है. तो यहाँ पे membrane bound antibody and what is the secretory antibody? What is the difference between these two? The membrane bound antibody will first time respond or that recognize the antigen, right? Recognize कर लिया, मैंने उसको पहचान लिया, तब मैं अपना क्लोन करूंगा. समझे? The antibody has first recognized the antigen. Now that antibody will produce the clone of antibody. That is why it is called as clonal expansion. क्या बोलते हैं उसको? Clonal expansion. The clonal expansion is because of which cell? That T helper cell. अब T helper ये एमपीएमटी का क्वेश्चन. अगर T helper cell नहीं होता तो ये क्या clonal expansion possible होता? The clonal expansion, that is the production of the mass number of free antibody or secretory antibody by approximately for 4 to 5 days is because of T helper cell. तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि T helper cell कौन सा एक्सपेंशन करता है ना? क्लोनल एक्सपेंशन. समझ में आ गया? एंड मेमोरी बी सेल, they will memorize for future response or secondary response as the story lymph node and spleen. ये आप लोगों को समझ में आ गया कैसे प्राइमरी रिस्पांस होता है? How the clonal expansion takes place by the plasma cells or B cells or effector B cells. Now we are coming to the different isotypes of antibody. अब तो बोले प्राइमरी रिस्पांस तो जरूरी तो नहीं है ना, ये प्राइमरी ही होगा क्योंकि एंटीजन
तो वो तो पहले ही पहले आया हो। तो क्या होगा, पहले तो किसी के फर्स्ट टाइम तो बॉडी को अटैक करेगा ना, तो हम लोग डायरेक्टली सेकेंडरी पढ़ेंगे नहीं। आपका आपका बॉडी स्टार्टिंग से ही सेकेंडरी रिस्पांस के लिए रेडी है। इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि एंटीजन फर्स्ट है। अरे नहीं आएगा क्या, तुम्हारा बॉडी जन्म से ही सेकेंडरी रिस्पांस के लिए रेडी है क्या? तो तुम्हारा बॉडी फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन को बाइंड नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे हम? क्या अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। सेकेंडरी रिस्पांस पढ़ेंगे, प्राइमरी को छोड़ देंगे। भाई हमारा तो बॉडी तो फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन को बाइंड कर चुका है, तो सिर्फ सेकेंडरी पढ़ेंगे। प्राइमरी रिस्पांस एग्जैक्टली, प्राइमरी नहीं होगा तो मेमोरी कैसे आएगा? We are coming to 5 classes or isotype of antibody. Five classes or isotypes of antibody. सेकेंडरी में होता है क्या, वही मेमोरी बी सेल डायरेक्टली प्लाज्मा सेल बनाएगा, वही सेम प्रोसेस। लेकिन ये मेमोरी सेल बनता कैसे है ना, हेल्पर टी सेल। मेमोरी बी सेल सेकेंडरी रिस्पांस में हेल्पर टी सेल की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी रिस्पांस में ये टी हेल्पर सेल की जरूरत नहीं है, मेमोरी बी सेल डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मा सेल। मैंने वही लिखाया था, देखो चेक करो, सेकेंडरी और एनाम्नेटिक रिस्पांस में यही तो लिखाया था, सेकेंडरी और एनाम्नेटिक रिस्पांस में कि डायरेक्टली द second time when this antigen will encounter, directly the memory B cell will produce the effector B cell. सिर्फ पढ़ो, अपना बुक्स को पढ़ो, अपना नोट्स को पढ़ो। तो नंबर 1, IgA, A stands for alpha, and that is approximately 15% of total antibody is formed of IgA. याद रखिए IgA dimeric form with J polypeptide chain. And 4 pareto. Four pareto का मतलब क्या है? This is supposed to be, as already told, in dimeric form. हम लोग जो डायग्राम पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे वो मोनोमेरिक फॉर्म का डायग्राम है, ठीक है। ये है डायमेरिक फॉर्म, एंड इस डायमेरिक फॉर्म में यहाँ पे होगा जे शेप का है, इसीलिए जे पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, जो कि दो मोनोमर को ये बाइंड करता है। तो दिस इज जे पॉलीपेप्टाइड चेन और जे चेन। पैरेटो का नंबर कितना हुआ? 1 2 3 एंड 4 हुआ कि नहीं? So J polypeptide chain will be applicable to those antibodies which having the more than one monomeric form. एक से ज्यादा होगा तभी पॉसिबल। ये डायमेरिक है इसीलिए प्रेजेंट, मोनोमेरिक में नहीं होगा। आप लिख नहीं रहे, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, तो लिखना भी पड़ेगा। हाँ मैं तो कंटिन्यू करूँ। So this is presenting mucus. This is present in mucus of respiratory tract. याद है ना? Gastrointestinal tract, urinogenetal tract, vagina. So it is present in the mucus in the respiratory, gastrointestinal, urinogenetal tract and vagina. And that is why, so very important, IgA forms first line of defense.
IgA forms the first line of defense against ingested and inhaled pathogen. The ingested मतलब those pathogen which is being enter into body through the food. Yes or no? And food किसके through pass करेगा? GI tract. And GI tract में है mucus. Mucus में है IgA. And those pathogen which is entering into the body through the air, that is inhalation. Respiratory tract. इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? Inhaled pathogen. So those pathogen which is enter into the that is body through the air, that is inspiration, and through the food, that is gastrointestinal tract. That is why it is the first line of defense against the ingested and inhaled pathogen. समझे? It is also present in colostrum. याद होगा? And colostrum के through ये antibody directly entry करता है into the newborn baby, or that is infant. So that provide which type of immunity? Natural passive immunity. याद है ना? To infant. So that will provide the natural passive immunity to the infant, especially up to first 6 months. क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका इम्यूनिटी ऑलमोस्ट नील है, राइट? उसको इम्यूनाइज करना जरूरी है, अदरवाइज हाउ द बेबी विल एनकाउंटर विद द पैथोजेंस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. इसीलिए मदर का जो कोलेस्ट्रॉम है, द फर्स्ट मदर मिल्क इज कोलेस्ट्रॉम. कोलेस्ट्रॉम का कलर गोल्डन येलो कलर होता है, एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय द mammary glands after 24 to 48 hours of parturition of the mother. Immediately parturition के बाद ये secret नहीं होगा. 24 to 48 hours ये vary करता है. So that is the first mother milk. ये milk जो white color होता है उससे पहले ये secret होता है. That is why it is called as first. Although it is not a milk. It is milk नहीं है ये, but it is treated as a first mother milk. Golden yellow color का होता है, and that is a very important for the newborn baby, as it provides the what na immunity to the that is inborn or the infant of the first 6 months, as it contains the IgA and provides the natural passive immunity. बहुत important. So this is all about the IgA. And याद रखिए IgA को हम लोग otherwise क्या बोलते हैं? Secretory antibody. इसको secretory antibody भी बोलते हैं. Ingestive and inhaled pathogen antibody भी बोलते हैं. We are coming to number 2. IgD. D stands for delta, and it is approximately less than 1%. इसका percentage है less than 1%. This is monomeric with 2 paratope. जिसका डायग्राम हम लोग पिछले क्लास में किए थे, वो मोनोमेरिक फॉर्म है, उसमें 2 पैरेटोप. Present in large quantity in B cell membrane. अभी हम लोग देख रहे हैं ना बी सेल का जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. पढ़े थे ना अभी? तो मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल कंटेन्स द एंटीबॉडीज व्हिच टाइप? IgG. अभी जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ बी सेल और बी सेल रिसेप्टर, ये कौन सा एंटीबॉडी है? IgD. So they actually activate and suppress the lymphocyte activity. So this IgD will activate and suppress the lymphocyte activity and present in large quantity in B cell surface or B cell membrane. So we are coming to the number 3.
IgE. E stands for epsilon. And it is actually also less than 1%. And this is also monomeric and 2 paraton. It is activated in allergic response. Mediate in parasitic infection. Mediate in parasitic infection. Okay, and play a very important role in the activation of histamine secreting cell. एंड हम लोग पढ़े हैं कि हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल बॉडी में दो ही टाइप का है, एक तो बेसोफिल एंड सेकंड इज व्हाट ना मास्ट सेल पढ़े हैं ना. दिस पर्टिकुलर IgE is percentage of IgE in body will be increased when the body get allergic, when the body get what kind of your parasitic infections. इसीलिए eosinophil का जो परसेंटेज है वो हाई हो जाता है when the person is get allergic response like your what ना common cold, like your hay fever. hay fever क्या है? हम लोग किसी एरिया में जैसे ही एंट्री करते हैं किसी डस्टी एरिया में, सपोज टू बी वी आर लिविंग इन द हाई सोसाइटी एरिया, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में थोड़ा सा क्या है ना अलग टाइप का माहौल होता है, अलग टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, अलग टाइप का कंडीशंस होता है एनवायरनमेंट का. तो किसी किसी लोगों को वो ससेप्टेबल हो जाता है, तो कंटिन्यूअसली स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है. कोई गांव के रहने वाला आदमी अगर वो किसी सिटी में जाते हैं, बहुत ज्यादा डस्टी है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसका भी वही सेम हाल होता है. एंड दैट इज व्हाट ना रनिंग नोज, वाटरी आई बिकम स्वेल एंड रेडेंड. इसको क्या बोलते हैं? हे फीवर. एंड इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट एलर्जिक रिस्पांस. जैसे ही कॉमन कोल्ड पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपके बॉडी में ये कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वगैरह होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो ये IgE का परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगा. ठीक है, एंड IgE का परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है मतलब ये किसको एक्टिवेट कर रहा है? मास्ट सेल एंड बेसोफिल. तो बेसोफिल का परसेंटेज जो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग होता है वो हाई हो जाएगा. तो ये इंडिकेशन है कि आपका बॉडी जो है वो एलर्जिक है, आपका बॉडी जो है इन्फेक्टेड है, because of the increasing percentage of what na eosinophil and increasing percentage of what na basophil. ठीक है, and eosinophil के बारे में हम लोग ब्लड में भी पढ़े थे, वही सेम चीज. So it activates the histamine secreting cell of basophil, that is and mast cell. So this is all about IgE. इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग एलर्जी जब जो पढ़ेंगे तो एलर्जी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. So next we are coming to IgG and the last one is IgM. तो पहले आते हैं IgG. That is for IgG. G stands for gamma. इसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होता है 75%. So most abundant. Monomeric form. Two para two. देखिए IgG आपके बॉडी में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, दैट इज 75%. तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके बॉडी का जो प्रिंसिपल एंटीबॉडी है वो है IgG. ठीक है, IgG का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फॉर एग्जांपल इट एक्टिवेट द phagocytic cells. So I told you in the previous class कि maximum antibody does not directly kill the antigen. As we can see very clearly that antibody actually first recognize the antigen, bind with the antigen,
and they will attract the phagocytic cells to come to phagocyte the antigen or the phagocyte the pathogen. I told you a pathogen contains many antigens present in their cell surface or plasma membrane or cell wall. तो एंटीबॉडी का काम क्या है ना, उस एंटीजन को पहले कैप्चर करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसका आइडेंटिफाई करना. एंड आईजीजी क्योंकि परसेंटेज में सबसे हाईएस्ट है, ये बाइंड भी करेगा, कैप्चर भी करेगा एंड फैगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करेगा एंड द फैगोसाइटिक सेल विल कम एंड दे विल किल देम. बहुत ही रेयर एंटीबॉडी होते हैं जो डायरेक्टली किल करते हैं. तो कुछ आईजीजी है जो डायरेक्टली किल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं ना, दे विल स्टिमुलेट द फैगोसाइटिक सेल, मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. और क्या करते हैं देखते हैं. Activate the phagocytic cells. Next, it activate the complement system. It activate the complement system. Act as opsonization. Neutralize the toxins and bind with neutrophil. अभी जो मैंने आपको लिखा था कि they will activate the phagocytic cell. One of the most important phagocytic cells present in your body is what name? The soldier of the body. है कि नहीं? देखिए आपके लिए सेकंड पॉइंट में मैंने इनका डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया कि इसका फंक्शन क्या है, एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम. मैं आपको खाली ऐसे बोल देता हूं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम, लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, लेकिन कंप्लीमेंट सिस्टम आईजीजी रिलेटेड है, इसलिए मैं खाली आपको बोल देता. कंप्लीमेंट सिस्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, although it is formed of what na complement protein. 30 different types of proteins are present which togetherly form the complement system, and that is why the proteins are complement protein. And is complement protein का function क्या है ना, they will kill the target cells or unwanted cell directly. तो IgG क्या करता है ना, उस complement system को activate करता है. मैं आपको बोला एंटीबॉडी मोस्टली doesn't kill the antibody, sorry, that is pathogen directly. They will, although we can say they assist indirectly kill करने में हेल्प करते हैं. कैसे ना कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, कैसे ना फैगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट किया. समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ दैट इज द रीजन व्हाई IgG is called complement antibody, opsonin antibody, and antitoxin antibody. अब भाई जो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, समझे कि नहीं? जो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा, टॉक्सिक केमिकल को हाइड करेगा, छुपा देगा. ऑब्वियस, इस कंसेप्ट को याद रखना, क्वेश्चन आएगा गारंटेड. उस देर में फिर से बोलूंगा, ठीक है? तो ये जो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी. उसका कंसेप्ट आएगा वैक्सीन को बेस करके, टॉक्साइड वैक्सीन. पढ़े हो ना टॉक्साइड वैक्सीन, इसी को कोरिलेट करेगा. देखते हैं कुछ ही देर. ऑप्शनलाइजेशन के बारे में 2 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे स्किप करते हैं, इसको छोड़ते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रोल इन सेकेंडरी और anamnestic response. The only antibody can cross the placenta, है ना?
एंड प्लेसेंटा का क्रॉस करके मदर टू फीटस आएगा कि नहीं? So that is the reason which provide the natural passive immunity to fetus. ये इनबर्न नहीं होगा, इनबर्न तो आफ्टर बर्थ होता है, ये तो प्लेसेंटल ट्रांसफर है, मतलब फीटस को इम्यूनाइज कर रहा है. एंड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? द सेम नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी. आपको कंसेप्ट याद है ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी, इट्स कॉल्ड एज पैसिव, एंड एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एक्टिव. क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट IgG. नेक्स्ट एंड द लास्ट, that is number 5, IgM. M stands for mu, and इसका जो परसेंटेज है that is approximately 7 to 10% होता है. The second, the third most abundant, second most abundant क्या था? IgA 15%. याद है? This is actually pentameric form. pentameric form में तो J chain होगा, J polypeptide chain, 10 paratope, largest antibody. देखिए ये है पेंटामेरिक फॉर्म ऑफ IgM. तो 10 पैराटोप आपको दिख रहा है, एंड ये हो गया जेंच. तो आप बताइए IgM के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पैराटोप, ये नॉर्मल बाइंडिंग करेगा कि मास बाइंडिंग करेगा? हाँ, सिंपली they will bind or they will get the large number of antibody at a time. large number of एंटीजन को वो एट ए टाइम बाइंड करेगा, इसीलिए क्या होगा? मास बाइंडिंग. एंड इस मास बाइंडिंग को साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं ना? एग्लूटिनेशन. समझे? तो विच एंटीबॉडी बाइंड्स विद द एंटीजन बाय मींस ऑफ द प्रोसेस एग्लूटिनेशन. कंसेप्चुअल. एंड परसेंटेज सबसे किस एंटीबॉडी का ज्यादा है? IgG. इसीलिए वो नॉर्मल बाइंडिंग करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बाइंड करता है. So that is called as opsonization. Opsonization को सिंपली बोलते हैं एडिरेंस. इसीलिए IgG ऑप्सोनिन एंटीबॉडी है एंड IgM एग्लूटिनेट एंटीबॉडी. क्लियर है? Who will bind with the antigen for first time and who will bind with the antigen rapid or speed or secondary? प्राइमरी सेकेंडरी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं. प्राइमरी मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, है कि नहीं? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन करेगा? जिसके पास नंबर ऑफ पैरेंटोप्स हाईएस्ट होगा. भाई सिंपल है. लेकिन IgG में मैंने क्या लिखा था? रोल इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. तो हु हैव द रोल इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स? IgM. Secondly, also act as complement antibody. ये भी complement antibody है क्योंकि ये भी complement system को activate करता है. ठीक है? Binds to antigen by agglutination or mass binding or clumping. Complete है? जो कोई दिक्कत है तो बोलिए. Types of or the isotypes of antibody I finished.
युग से इसीलिए प्रेजेंट तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का लगा लेंगे उसके लिए हो सकता है. The last point under this, it's also activate B cells and macrophage. Macrophage क्या है? Phagocytic cells. And activate B cell करेंगे तो और ज्यादा antibody form होगा. ठीक है? So this is all about the different isotypes of antibody. Now we are coming to the next stage, and that is antigen antibody interaction. Antigen antibody interaction. See, what are the mechanism which we can discuss here, that is antigen and antibody interacting with each other. Number one, maximum चीज मैंने समझा दिया है, खाली मैं नाम लिख देता आपको समझ में आ जाएगा. Number one is agglutination. अभी बात कर रहे थे ना, mass binding or clumping of antigen with antibody is called as agglutination. Number two, opsonization or adherence. Opsonization और adherence में क्या होगा ना, simple binding. That is binding of antigen with antibody. That is called as adherence or opsonization. And that is example मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही दे चुका हूँ. नंबर थ्री, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में होगा क्या, देखिए सपोज टू बी कोई बहुत जोर से रैपिडली स्पीडली भाग रहा है, आप उसको पकड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? या तो आप उसको पैर में गोली मार दीजिए, सिंपल है भाई. ऐसा कुछ करिए जो दौड़ना बंद कर दे या तो स्लो डाउन हो जाए तो आराम से कैच करेंगे. यही तो करते हैं पुलिस वाले, भाग रहे मारो उसको गोली पैर में. हम लोग भी वही कर रहे हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन. सॉल्युबल एंटीजन, लाइट वेट एंटीजन को हम लोग इनसॉल्युबल एंड हेवी वेट बना देते हैं. इससे होगा क्या कि जो स्पीड ऑफ एंटीजन है, स्पीड ऑफ पैथोजन है, तो स्लो हो जाएगा और आराम से फैगोसाइटिक सेल उसको कैप्चर करेंगे, मार देंगे. अरे समझे कि नहीं? यही है फंडा इसका, प्रेसिपिटेशन. soluble and lightweight antigen means pathogen. Converted into insoluble and heavyweight. So that phagocytic cell, phagocyte them easily. ये है एक तरीका. नंबर 4 में आते हैं व्हाट नाम, न्यूट्रलाइजेशन. अभी हम बता रहे थे ना, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि द एंटीबॉडी विल हाइड, एंटीबॉडी हाइड द टॉक्सिक प्रॉपर्टी of pathogen.
अब भाई कोई किसी पैथोजन का अगर टॉक्सिक केमिकल को ये हाइड कर देता है, क्लोज कर देता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये तो किल नहीं कर रहा है ना, ये खाली उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया. तो एंटीबॉडी विल हाइड और क्लोज द टॉक्सिक प्रॉपर्टी और टॉक्सिक नेचर ऑफ द पैथोजन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, न्यूट्रलाइजेशन. इसका एंटीबॉडी कौन सा था मैंने बताया था, IgG. That is why they are called as anti-toxin antibody. And the last is number 5, lysis. Lysis में some antibody which are actually powerful antibody. कुछ powerful antibody होते हैं जो directly kill कर देते हैं, मैंने बताया था. Some powerful antibody directly kill the target pathogen by acting as परफोरिन. परफोरिन का कंसेप्ट फिर से रिमाइंड कर रहा हूं. परफोरिन will create the pores in the plasma membrane of the target cell. The water will enter, swell, burst and die. याद है? तो यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीबॉडी है. These antibody directly act as perforin. क्योंकि एंटीबॉडी क्या है? It is none other than protein. परफोरिन क्या है? None other than protein. मतलब एंटीबॉडी यहाँ पे परफोरिन प्रोटीन का काम करेगा. Directly they will create the pores in the target cell to kill them. ये क्या हो गया? Lysis. So these are the different way in which the antibody will target the antigen to kill them, to target them, to finish them. तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. समझ में आया? तो हम लोग क्या फिनिश किया अभी तक? ह्यूमरल मेडिएटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी फिनिश हो गया. समझ में आया? तो बी सेल के रेस्पेक्ट में जितना भी कहानी था कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का सेकंड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. कंप्लीट है? Cell mediated immunity, that is CMI. It is formed of T cells, and I've told you T cells formed in bone marrow and matured in fibers. and आप लोग पढ़े हैं chemical coordination में, the secretion of the hormone called as thymosin hormone is responsible for the differentiation and maturation of T cells or T lymphocyte, right? So T stands for thymus, B जैसे bone marrow था, T stands for thymus. Second point is CMI is responsible for acceptance or rejection of tissue transplant. That is grafted organ or tissue transplant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Who is responsible for the that is successful or rejection, that is unsuccessful transplanted organs? Na CMI. HMI is not responsible for the successful kidney transplantation or XYZ organ transplantation. कौन इसको accept करता है और reject करता है? ना CMI. क्यों? Why? Because T cell will bind with, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है. Why not B cell? Why the only T cell is responsible for this? ना T cell सिर्फ उसी एंटीजन को बाइंड करेगा जिस एंटीजन के पास एक यूनिक प्रोटीन प्रेजेंट है, and that unique protein is only present in the living cell. मेरे बॉडी में कोई
बाहर का ऑर्गन एंट्री किया, मतलब सपोज टू बी आई एम ए रिसिपिएंट ऑफ सपोज टू बी ए किडनी, मुझे कोई XYZ पर्सन ने किडनी डोनेट किया है, तो किडनी जो डोनेट किया वो तो लिविंग ऑर्गन है ना, उसमें लिविंग सेल है, उसमें वो यूनिक प्रोटीन प्रेजेंट होगा एंड वो यूनिक प्रोटीन मेरे बॉडी का यूनिक प्रोटीन के साथ मिसमैच करेगा। समझेगी नहीं, मैं बताऊंगा पूरा क्लियरली उसका डिटेल्स। Now the CMI is responsible for that antigen which is living antigen. तो ये किडनी मेरे लिए तो एंटीजन हो गया ना, क्योंकि वो तो फॉरेन है, मेरा बॉडी उसको ट्रीट करेगा एज ए सेल्फ और नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मिसमैचिंग ऑफ दिस यूनिक प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं MHC प्रोटीन। क्या बोलते हैं? MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मैं स्पीड में हूं, आपको स्पीड में जाने की जरूरत है। मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जस्ट कीप पेशेंस। अभी तक ऐसा कुछ चीज हुआ है जो मैं छोड़ के चला गया और आपको पता चला कि सर ने बताया नहीं? अभी तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? calm down, keep पेशेंस। अरे समझेगी नहीं? तो भाई किडनी जो है वो लिविंग एंटीजन है एंड लिविंग एंटीजन को कौन बाइंड करता है? CMI। टारगेट कौन करता है? CMI। तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन? ये है उसका फंडा। बाकी जो है HMI सॉरी CMI का जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसके बारे में हम बताएंगे 2 मिनट। नाउ दिस इज the T cells and this is supposed to be a naive T cell। जैसे naive B cell था ना, वैसे हो गया naive T cell एंड वहां पे जैसे B cell रिसेप्टर था, यहाँ पे होता है T cell receptor। Supposed to be this is the T cell receptor। Supposed to be this is a T cell receptor। And this is to be bind with the antigen for first time। एंड इस एंटीजन के पास अभी मैंने जैसे बोला इसके पास एक यूनिक प्रोटीन है। दिस इज द एंटीजन, as already told this is the living antigen with the MHC protein और इसको अदरवाइज बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA। धीरे धीरे बताएंगे, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, बस डोंट वरी। तो MHC प्रोटीन और HLA एंटीजन it is only present in the living antigen and this naive T cell will bind with this particular antigen or living antigen which contains the MHC। बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये अभी क्या करेगा ना, डिवाइड करेगा। क्योंकि मैंने बोला था कि specific B cell and specific T cell when they will bind with the antigen for first time they will bind with the effector B cell and memory B cell, effector T cell and memory T cell। याद आया? जैसे B cell का मैंने दिखाया था, T cell का दिखा रहा हूं मैं। तो T cell when bind with the antigen for first time they will also divide, produce 4 different type of T cells। Number 1, cytotoxic और killer T cell। तो हम लोग लिखेंगे TC और PK cell। Second is helper T cell और TH cell। Third is suppressor T cell or TS cell and the last one is
memory T cell or TM cell. So after binding the antigen for the first time, the T cell, the name T cell will bind and divide to produce the 4 different type of T cells. अब ये चारों का फंक्शन हम मेंशन कर देते हैं. First is cytotoxic or killer T cell. Secrete the porphyrin to kill the targets. टारगेट सेल हमने हमेशा बोला है कि टारगेट सेल हमेशा क्या होता है, अनवांटेड सेल्स होता है. या तो फॉरेन सेल हो गया, या तो वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, या तो व्हाट दैट इज कैंसरस सेल हो गया. तो इसलिए मैं हर जगह वही चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली टारगेट सेल लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. सो हाउ this cytotoxic T cell are killing the target cell by means of secretion of what, the porphyrin protein. And porphyrin protein का पूरा मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूं. They will create the pore, the water will enter, swelling, burst, and that will be phagocyted by the phagocytic cells. इसीलिए उसको किलिंग सेल बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं. These are toxic to cell. Second is helper T cell. Helper T cell that secrete the cytokine called as IL-4. इंटरल्यूकिन, IL का फुल फॉर्म है इंटरल्यूकिन, एक टाइप का साइटोकाइन. साइटोकाइंस क्या है ना, दोस केमिकल्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय एनी सेल इज कॉल्ड एज साइटोकाइंस. साइटोकाइन का मतलब क्या है, द केमिकल व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द cells is called as cytokine, and one of the cytokine is called as what, interleukin 4. 1 2 3 4 बहुत सारा है, डिटेल्स में नहीं जा रहे क्योंकि ये सब सिलेबस से बाहर है. So secrete a cytokines, that is IL-4, which helps the division of, याद करिए अभी कुछ देर पहले बोला था कि टी हेल्पर सेल बी सेल को हेल्प करता है फॉर द डिवीजन, याद है, helps the division of B cell to produce antibody. It also activate killing ability of TC और TK से. आप सोचिए कि भाई एड्स और HIV जो है वो टी हेल्पर सेल को ही टारगेट करता है ना, याद करिए. तो अगर HIV टारगेट करेगा टी हेल्पर सेल को, तो इसके वजह से टी हेल्पर सेल का नंबर रिड्यूस करेगा. टी हेल्पर सेल का नंबर अगर रिड्यूस करता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल दैट इज बी सेल विल अनेबल टू डिवाइड, राइट. साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलिंग टी सेल आल्सो हैव द लेस एबिलिटी टू किल द टारगेट सेल्स. तो आपका बॉडी का टोटल जो इम्यूनिटी है वो टी हेल्पर सेल के हाथ में. बी सेल को हेल्प कर रहा है तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी इसके कंट्रोल में. साइटोटॉक्सिक टी सेल को कंट्रोल कर रहा है तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी इसके कंट्रोल में. तो टी हेल्पर सेल अगर रिड्यूस किया एचआईवी के थ्रू टारगेट करता है तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी धीरे धीरे डेफिशिएंट होगा. इसीलिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. and ये acquired disease है, it is not an inborn disease, it is acquired disease where the immune system become deficient and there is a collection of symptoms called as what, a syndrome. Next है suppressor T cell. Suppressor T cell will suppress the overactivity of helper T cell and cytotoxic or killer T cell. इससे फायदा क्या होगा, सप्रेस T cell ओवर एक्टिविटी ऑफ हेल्पर T cell एंड साइटोटॉक्सिक T cell को सप्रेस करता है. इससे फायदा क्या होगा,
that will prevent the autoimmunity. नहीं तो अगर टी हेल्पर सेल अगर ओवर एक्टिवेट होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल अगर ओवर एक्टिविटी हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो ये खुद अपना सेल्फ सेल को भी टारगेट कर सकता है. And that is why they are preventing the autoimmunity. समझे? The last one is memory T cell. I already told memory T cell is the only which is undifferentiated. बाकी जो TH सेल है, TC सेल है, TS सेल है, ये तीनों क्या है? डिफरेंशिएटेड है क्या अनडिफरेंशिएटेड है? मैच्योर्ड है कि इमैच्योर्ड है? मैच्योर्ड है. डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर, undifferentiated मतलब immature. That is why the memory T cells stores in spleen and lymph nodes for future research. समझ में आया? डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल समझ में आ गया. अब हम लोग थोड़ा सा एमएचसी की तरफ जाएंगे. ये कंसेप्ट ऑफ एमएचसी क्या है, एचएलए क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का डिफरेंट टाइप्स क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या है, एलोटाइप क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो मेजर histocompatibility complex or MSC so major histocompatibility complex or MSC protein also called HLA, that is human leukocyte antigen. Encoded by MHC जीन. देखिए हर प्रोटीन को जो बनाता है एक रेस्पॉन्सिबल जीन होना चाहिए. तो MHC प्रोटीन आपके बॉडी में जो प्रेजेंट है, उस MHC प्रोटीन और HLA एंटीजन को कौन बनाता है? एक MHC जीन बनाता है. And that MHC gene present in 6th chromosome of human being. The array or sequence. हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो twin set of chromosome है, one set comes from the father parent and another set from the mother parent. समझे कि नहीं? तो 6th chromosome में भी तो paired है. One comes from the father, another comes from the mother. And ये जो 6th chromosome pair है, तो homologous of the 6th chromosome contains the sequence of allele. अरे समझे कि नहीं? तो 6th chromosome में ये जो MHC जीन का जो एलील है, 50% और one chromosome with one array comes from the father and other comes from the mother. And इसीलिए हम लोग 50% मदर के साथ मैच करते हैं and 50% फादर के साथ मैच करते हैं with respect to MHC. चेहरा के हिसाब से बात नहीं कर रहे, MHC के हिसाब से बात कर रहे हैं कि 50% MHC मैच फादर के साथ करता है, 50% मदर के साथ मैच करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? So array or sequence of allele of MHC present in chromosomes
is called halotype. बोलते हैं उसको halotype. What is halotype? Halotype क्या हुआ? Now the sequence of allele of MHC on each homologous of sex chromosome is called as what? Halotype. तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो halotype है 50% match with father and other 50% match with what? Na mother. एंड इसी हैलोटाइप मैचिंग को हम लोग बेस करते हैं फॉर द व्हाट टिश्यू टाइपिंग और टिश्यू मैचिंग. अगर आप टिश्यू मैच नहीं करेंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस कैसे होगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा ना. तो हैलोटाइप मैचिंग इज द बेसिस ऑफ टिश्यू टाइपिंग और मैचिंग. So tissue tagging or tissue matching during what? During transplantation. इसीलिए टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले रिसिपिएंट एंड डोनर का टिश्यू टाइपिंग और मैचिंग किया जाता है. एंड उस टिश्यू टाइपिंग और मैचिंग में हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, क्या मैच करते हैं? हैलोटाइप मैचिंग. एंड हैलोटाइप मैचिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है. समझ में आया? जल्दी कंप्लीट करिए. हेलो सर, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट. देखिए ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग 4 different types. आइसोग्राफ्ट पहले ऑटोग्राफ्ट. Next is isograft. Next is allograft. Last is xenograft. Autograft, transplantation of any kind of structure or tissue within same body. बॉडी का सेम बॉडी में तो हार्ट एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकते. बॉडी सेम होना चाहिए, तो एक ही चीज ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पे, वो है स्किन ग्राफ्टिंग. एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? ऑटोग्राफ्ट. within the same body of the individual, it is called as what na? Autograft. Isograft within identical twins. Allograft within the individual of same species. And xenograft within the individual of different species. So maximum transplantation किस टाइप का होता है? Allograft. The transplantation between the donor and recipient belongs to the same species. अगर तो identical twins के बीच में हुआ तो क्या हो जाएगा ना? Isograft. Now halotype
मैचिंग, अगर हेलोटाइप मैचिंग देखें तो सबसे ज्यादा किसमें मैच करेगा ना, आइडेंटिकल ट्विंस, सबसे ज्यादा मैच करेगा आइडेंटिकल ट्विंस को, क्योंकि ये क्या जेनेटिकली सिमिलर है। उसके बाद कौन होगा ना, विथ सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स के अंदर आप फ्रैटर्नल ट्विंस को दे सकते और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को दे सकते हो। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस नॉट कन्वर्ट द आइडेंटिकल, आप पढ़े कि आइडेंटिकल मतलब मोनोजाइगोटिक, नॉन आइडेंटिकल मतलब डाइजाइगोटिक। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस किसमें आ जाएगा, सिबलिंग्स के अंदर आ जाएगा, उससे कम होगा पेरेंट्स में एंड बाकी हो जाएगा अदर्स। तो सबसे ज्यादा आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स किसमें यूज करेंगे, अदर्स कम यूज करेंगे किसमें, आइडेंटिकल। समझ में आएगी नहीं, ये तो कंप्लीटली हेलोटाइप मैचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जेनोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट में सबसे ज्यादा यूज होगा। समझ में आएगी नहीं, जितना ज्यादा डिसिमिलरिटी, जितना ज्यादा लेस क्लोजनेस, उतना ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। Immunosuppressive drugs mostly to be used are cyclosporin A, orthoclane OKT3, ये भी आजकल यूज होता है, and all extracted from, ये फंगस से एक्सट्रैक्ट होता है कि नहीं, हाँ ट्राइकोडर्मा, yes. So this is all produced from the fungi, the cyclosporin. All these are the concept behind the transplantation, etc., etc. Now we are coming to the next topic of this chapter, types of immunity. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। इम्यूनिटी दो टाइप का है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव किसको बोलते हैं, that is endogenous fraction of एंटीबॉडी। अरे भैया अगर बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है, एंटीजन अंदर एंट्री करेगा तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। सो एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी मींस एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ व्हाट, द एंटीजन। एंड एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर दो चीज आता है, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल के एग्जांपल क्या होगा, आर्टिफिशियल के एग्जांपल क्या होगा, जो नेचुरल वे में होता है ना, इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यू टू रिकवरी फ्रॉम डिजीज, वैक्सीन नेचुरल वे में बनाया जाता है। नहीं मतलब मैक्सिमम यही हाँ, so immunity developed due to recovery from any disease। ये डिजीज से हम लोग रिकवर क्यों किए ना, बिकॉज द इम्यूनिटी हैज बीन फाउंड इन द बॉडी, एंड वो इम्यूनिटी नेचुरल वे में बनता है, दैट इज व्हाई इट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बट द इम्यूनिटी व्हिच इज टू बी बिल्ट इन द बॉडी विदाउट एनी डिजीज, डिजीज बिना हुए हम लोग अपना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू व्हाट ना, मास वैक्सीनेशन। तो जितने भी वैक्सीन का नाम आएगा वो सब किस कैटेगरी में आ जाएगा ना, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव का मतलब मैंने अभी बोला था ना, दैट इज एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी, है कि नहीं, बाहर से एंटीबॉडी सप्लाई होगा, देन इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। एंड इसका भी दो है, एक नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल में अभी हम लोग एग्जांपल दे रहे थे, IgA थ्रू कोलेस्ट्रॉल,
एंड IgG थ्रू प्लेसेंटा, याद है ना? ये तो नेचुरल वे पैसिव इम्यूनिटी प्रॉन करता है। एंड आर्टिफिशियल में हम लोग एग्जांपल देंगे ATS एंटी टिटेनस सीरम, याद है ना? एंड एंटी वेनिन और एंटी वेनम। एंटी वेनिन और एंटी वेनम इज द actually the injection which is to be given to the snake bite victim. स्नेक का जो पॉइजन है उसमें होता है एंटीजन, अरे है कि नहीं? जो स्नेक पॉइजन है उसमें क्या पॉइजन ही तो है, तो पॉइजन मतलब मेरे लिए तो फॉरेन हो गया, तो वो एंटीजन है। तो स्नेक पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एंटीडॉट और एंटीवेनिन और एंटीवेनम। तो उसमें एंटीबॉडी होगा कि एंटीजन होगा? एंटीबॉडी होगा। एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसेस व्हाट? ना पैसिव इम्यूनिटी। एंड ये आर्टिफिशियल वे में बनाया जाता है किसके बॉडी से? हॉर्स के बॉडी से। हॉर्स के बॉडी से बनाया जाता है ये, दैट इज एंटीवेनिन। एंड इट इज एंटी टिटेनस सीरम हम लोग पढ़े थे टाइप किसमें? टिटेनस में पढ़े थे। दैट आल्सो कंटेन्स व्हाट? ना एंटीबॉडी। क्लियर है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा यहां से। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is vaccination and immunization. Complete है? Who is the father of immunity? Immune system. कौन है? हम लोग पढ़े पिछले क्लास में ही पढ़े थे। Who is the father of immunology? Edward Jenner. Why can't so? First vaccine क्या था? Smallpox. First vaccine prepared and first true vaccine is फर्स्ट ट्रू वैक्सीन और नॉर्मल वैक्सीन में डिफरेंस क्या है? अरे वैक्सीन वो होना चाहिए, ट्रू वो होना चाहिए जो बिना डिजीज क्रिएट किए आपका इम्यूनिटी को बिल्ड अप कर दे। लेकिन ये जो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन कौन दिए थे? एडवर्ड जेनर, बाय मींस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट था, लेकिन फर्स्ट ट्रू वैक्सीन कॉलेरा, लुईस पैस्चर। याद रहेगा? फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय लुईस पैस्चर। हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन में। फर्स्ट आते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन that is also called as whole body pathogen vaccine। कंसेप्ट को समझ लीजिए। In case of first generation vaccine, what actually we are preparing, what we actually injecting into the host body ना, whole pathogen body, पूरा का पूरा बैक्टीरिया, पूरा का पूरा वायरस को हम लोग डालते हैं बॉडी में। समझे कि नहीं? जैसे आपका एनिमी जितना स्ट्रांग होगा, आपका इम्यूनिटी भी उतना ही स्ट्रांग। अरे है कि नहीं? अगर मेरा पड़ोसी बहुत ही शांति स्वभाव के होंगे तो मेरा डिफेंस सिस्टम भी वीक ही होगा ना। मैं फालतू में अपना जो है वो जो पूरा जो बजट है वो फालतू में हम डिफेंस में क्यों डालेंगे? एजुकेशन में डाल सकते हैं, जॉब सेक्टर में डाल सकते हैं, डिफेंस में क्यों डालेंगे? क्योंकि मेरा जो नेबर है वो थोड़ा सा शांत नहीं है, अशांत है, इसीलिए मुझे डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं? तो भाई अगर हम डायरेक्टली पैथोजन को आपके बॉडी में डाल देंगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग एंटीजन हुआ ना,
तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा कि लूज और दैट इज वीक होगा? Strong होगा. That's the reason. So provide lifelong or long-term immunity. फर्स्ट जनरेशन के अंदर सर इसका साइड इफेक्ट्स तो थोड़ा सा होता है, बट दैट इज मिनिमम. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में फर्स्ट आते हैं सब यूनिट वैक्सीन, नहीं पहले सब यूनिट टाइम सॉरी लाइव एटेन्यूएट लाइव और एटेन्यूएटेड और वीकेंड वैक्सीन. बात को समझ लीजिए. Here the pathogen of the whole body pathogen is treated as in weak or it is an strong. यहाँ पे ये लिविंग एंटीजन है, मतलब आप इसको फर्स्ट टाइम में पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो पूरा लिविंग कंडीशन में, लिविंग कंडीशन में, लेकिन हमने उसको वीक कर दिया है. समझे कि नहीं? अगर ये स्ट्रांग होता तो ये तो आपके बॉडी में डिजीज कर देता. डिजीज करेगा तो फिर वैक्सीन क्यों हुआ? ये लिविंग है, देख तो रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड कुछ नहीं. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ देख सकता है लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, जीरो, क्योंकि वीक है ये. फिर भी हम देख रहे अच्छा जिंदा है, उसके लिए रेडी करो. लाइव एडेप्ट और वीकेंड वैक्सीन में that will provide lifetime immunity. Example: smallpox, BCG, OPV, MMR, influenza. ये जितना वैक्सीन है बहुत इफेक्टिव है कि नहीं? बोलिए. मैंने बोला था ओपीवी एंड आईपीवी व्हिच इज मोर इफेक्टिव? ओपीवी. नंबर 2 किल्ड वैक्सीन. यहाँ पे ये होल बॉडी पैथोजन तो है लेकिन नॉट इन द लिविंग कंडीशन बट इन द किल्ड कंडीशन. थोड़ा सा वीक हो गया कि नहीं? And that will provide long-term immunity. That will provide long-term immunity. Lifetime नहीं, lifetime living वाला होगा, killed वाला long term के लिए होगा. इसीलिए उसको बहुत सारा डोजेस लिया जाता है. इसका एग्जांपल हो जाएगा टाइफाइड, रेबिस, कॉलेरा, आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. ठीक है ना? तो ये था फर्स्ट जनरेशन. एंड जो कोविड वैक्सीन था वो क्या था? ना किल्ड वैक्सीन था. किल्ड किल्ड था ये होल बॉडी पैथोजन. अरे समझ में आ गया? चलिए आगे. साइंटिस्ट थोड़े ना चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे थे कि आपको फायदा मिले. तो हम लोग बोलते हैं कि हम टैक्स फालतू में दे रहे हैं. लोग सोचते क्या रहे यार, इनकम तो हम कर रहे, हम टैक्स क्यों दें? अजीब चीज है भाई. टैक्स नहीं दोगे तो हम लोग सुकून से रहेंगे कैसे? इंडिया चलेगा कैसे? साइंटिस्ट लोगों को पैसा मिलेगा कैसे? सब चीज लूट. ये दोगे तो ये मिलेगा. तो नहीं देता उसको खुद मिलेगी. तो मत दे. नहीं वक्त तो देख वाला होता है मेरे पास. तो हम वासे कर दे. We are coming to the second generation vaccine.
सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग ऑफ कंपोनेंट और प्रोडक्ट ऑफ पैथोजन। यहाँ पे फुल पैथोजन का बॉडी यूज नहीं करते, उसका पार्ट यूज करते हैं, कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है, और उसका कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉट द होल बॉडी। इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट बिना, नो साइड इफेक्ट। एंड उसके अंदर फर्स्ट है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में हम लोग यूज करते हैं यूजिंग ऑफ टॉक्सिन। इसे बैक्टीरिया का टॉक्सिन हम लोग यूज करते हैं एज ए वैक्सीन, इसी को टॉक्साइड वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल डिप्थेरिया टॉक्साइड, टिटेनस टॉक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा टॉक्साइड वैक्सीन कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी। खाली वैक्सीन में नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा टॉक्साइड कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी। टॉक्साइड प्रोवाइड व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। और भी खतरनाक क्वेश्चन, टॉक्साइड प्रोवाइड व्हिच इम्यूनिटी। बस इतना याद रहना चाहिए कि टॉक्साइड इज अ वैक्सीन एंड वैक्सीन प्रोवाइड, कितना इजी है देखो, बस खाली इतना याद रखते हैं कि टॉक्साइड एक वैक्सीन है, टिटेनस एंड डिप्थेरिया। हम लोग इसी बात के अभी बात कर रहे थे ना, टॉक्सिक केमिकल को हाइड कर देते हैं एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन, वही तो है। नंबर 2 रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। Here recombinant protein produced from recombinant protein produced and introduced into host। भाई बहुत ही स्किप कर दिया है जानबूझ के यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक में डिटेल्स जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा हूँ। याद रखिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, द प्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय recombinant DNA technology और biotechnology are called as recombinant protein। हम यहाँ पे recombinant protein पहले बनाते हैं, फिर उसको वैक्सीन के तौर पे होस्ट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। बात को समझिए, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। एक बैक्टीरिया और एक वायरस का मैंने डीएनए लिया, ठीक है, उस डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक डीएनए की होस्ट डीएनए, पैथोजेनिक डीएनए, एंड दैट पैथोजेनिक डीएनए is to be along with the vector, हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे अभी, as it is bind with the vector। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो होस्ट के अंदर ये जो पैथोजेनिक डीएनए था वो रेप्लिकेट, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट करेगा कि नहीं, तो उस होस्ट के बॉडी के अंदर पैथोजेनिक प्रोटीन फॉर्म होगा, एंड उस पैथोजेनिक प्रोटीन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, समझे। एंड उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अपने बॉडी में क्या एंट्री हुआ, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। पैथोजेनिक प्रोटीन है कि ओन प्रोटीन है, पैथोजेनिक प्रोटीन है, क्योंकि पैथोजेनिक डीएनए से बनाया गया है। वो पैथोजेनिक प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मेरे बॉडी के लिए सेल्फ होगा कि नॉन सेल्फ होगा, सेल्फ हो गया कहानी। तो नॉन सेल्फ में तो मेरे बॉडी में एक्टिवेट होगा कि नहीं इम्यून सिस्टम, लेकिन सेफ है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट नील साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल करेगा, hepatitis B recombinant vaccine and herpes vaccine
produced from yeast. ये एनसीईआरटी का लाइन, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हम लोग पढ़े थे, जिसको क्या बोलते थे, रिकॉम्बिवैक्स बी वैक्सीन, याद है? इसी वैक्सीन को ही तो रिकॉम्बिवैक्स बी बोलते हैं, and that is produced from the yeast cell, and this is very effective vaccine. And the last number 3, third generation. सर ये नहीं, ये क्या था? सेकंड जनरेशन, अभी आता थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन वैक्सीन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पैथोजेन डीएनए along with retrovirus introduced into host body as vaccine. अगर हम पैथोजेनिक डीएनए को वेक्टर के थ्रू ईस्ट के अंदर डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा, then that protein will be used as a vaccine, then it is called a second generation. ठीक है? लेकिन वही पैथोजेनिक डीएनए को डायरेक्टली अगर हम अपने बॉडी में डाल दिए तो हो जाएगा उसको थर्ड जनरेशन. ठीक है? So here the directly the pathogenic DNA along with the retrovirus introduced into the host body as vaccine, so called DNA vaccine. इसीलिए थर्ड जनरेशन वैक्सीन को क्या बोलते हैं? डीएनए वैक्सीन. इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी डीएनए वैक्सीन. तो डीएनए, देखिए हेपेटाइटिस बी का 2 वैक्सीन हो गया, एक तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, दूसरा है डीएनए वैक्सीन. तो याद रखिएगा वो क्या पूछ रहे हैं आप. अगर आपको पूछा है कि हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो हो जाएगा सेकंड जनरेशन. अगर पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस बी डीएनए वैक्सीन, देन हो जाएगा थर्ड जनरेशन. कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यून रिलेटेड, दैट इज व्हाट, दैट डिजीज.